12 days of breathless action, incredible performances by athletes, stories of a lifetime, and an impressive 61 medal haul. The 2022 Birmingham Commonwealth Games witnessed some of India's top athletes living up to their reputation and many punching above their weight to make a name for themselves. Over the next half hour, we will hear from the new icons of Indian sport, fresh winners that these games threw up, to listen in to their incredible stories. But first up, with a total of 61 medals, India finished fourth on the table, winning 22 golds, 16 silver medals and 23 bronze. Now this tally was 5 medals short of what we won in the last CWG and far behind our best show in 2010 when we won a whopping 101 medals. But a closer analysis shows that India's performance was still extremely impressive, since our most successful sport in CWG history, shooting, was not part of this edition. In 2018, India had won 16 medals from shooting alone. So if you take that out, India has superseded that previous count. And behind India's impressive medal tally, despite shooting, archery and Greco-Roman wrestling not being part of the Birmingham Games, are new heroes from new sports and historic firsts. For example, the gold medal in women's lawn bowls. Rupa Rani, Lovely Chaube, Pinky and Nayan Moni beating South Africa 17-10 in the final. Then Ranki Reddy and Chirag Shetty winning a historic gold medal, a straight sets win, giving India its maiden doubles gold for shuttlers. Bronze for Tejashwin Shankar in men's high jump. This was India's first ever medal in this discipline. Saurav Ghoshal won a bronze in squash singles. This was India's first ever medal in singles in squash at the Commonwealth Games. Silver for Priyanka Goswami in race walk. She became the first Indian woman to do so at the Commonwealth Games. Avinash Sable won a silver in 3,000 meter steeplechase. He also became the first male athlete to win a long distance medal at the Commonwealth Games. So first up, let's listen in from the women lawn bowls team, a sport that was nearly unheard of in India until this 4-woman squad of Lovely, Pinky, Nayan Moni and Rupa created history and etched their name in Indian sporting history. ये जो विन है आपका, ये जो जीत है आपकी, ये आपके लिए इतनी इमोशनल क्यों थी? क्योंकि हमने देखा जब आपने फाइनल जीता, सेमीफाइनल जीता, तो आंसू निकल गए, आप एक दूसरे से गले मिलके रो रहे थे. Why was this win so emotional for you? Pinky, if you would like to start. क्योंकि एक्चुअली हम पिछले 11 साल से काफी हार्ड वर्क कर रहे थे इस दिन के लिए. तो 11 साल आपको ही पता मायने लगता है, उसमें कितनी रातें हैं, कितनी दिन है, कितनी सुबह है, कितनी टेंशन है, कितना हार्ड वर्क है, कितने कॉम्प्रोमाइज है. तो ये सारी चीजें जब एक साथ उसका जो रिजल्ट निकला, जो आप सबने देखा है, गोल्ड मेडल, तो ऑब्वियसली उस समय खुशी के आंसू आने ही. रूपा, how would you describe this win, this moment? क्या मायने रखता है ये गोल्ड आपके लिए, जो इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक गोल्ड था? हाँ, हमारी जीत एकदम ऐतिहासिक जीत है, जैसे आपको पता है. और इस ऐतिहासिक जीत के पीछे हम चारों का टीम वर्क है. हमने एक टीम वर्क बना के कि जिसकी जो पोजीशन है उसमें हमें अपना आज तक का बेस्ट करना है, ये हमने सोचा था. और हम चारों ने ये भी ठाना था कि ये जो 2-2.5 घंटे हमारे मैच के हैं, वो हमारे जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण घंटे होंगे, जिसमें हमने आज तक जितना ट्रेनिंग लिया है, जितना कुछ भी सीखा है, उन सबको इस 2.5 घंटे में हमें अप्लाई करना है. एक दूसरे का साथ देके और जो बुद्धि, ज्ञान और समझ जो गेम के दौरान हम चारों को रखनी थी, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाकर, एक को मोटिवेट कर, वो सब हम चारों ने अपने पुराने मैच में किया है. एक का हमारी टीम के पीछे महत्वपूर्ण योगदान है. किसी एक के भी बिना हम चारों अधूरे थे इस गेम के लिए शायद. तो आज ऊपर वाले ने भी हमारा साथ दिया है, हमारी मेहनत को देखा है. तो बहुत ही ऐतिहासिक रहा हम चारों के लिए भी और हमारी लाइफ के लिए. बिल्कुल ऐतिहासिक तो रहा है, और आपकी वजह से लॉन बॉल्स जो एक स्पोर्ट है उसको लोग दुनिया में, इंडिया में जानने लगे हैं. लवली, आप सबसे सीनियर मोस्ट प्लेयर हो इस क्वार्टेट के. आप लोगों ने एक चीज जो दिखाई है वो ये है कि एज इज जस्ट अ नंबर. आप सबकी उम्र 30, 35, 40 साल की है, उससे भी ऊपर है, लेकिन उस एज में भी हिस्ट्री बना सकते हो. अगर आपका कोई ड्रीम है आप उसको फुलफिल कर सकते हो. स्पेशली महिलाओं के लिए आपने ये बहुत बड़ा मैसेज दिया है.
जी, ये तो महिलाओं के लिए बहुत मतलब अच्छा मैसेज है, हम लोग चारों ने दिया है और हम चाहेंगे कि आगे बढ़-चढ़ के वो लोग इस इवेंट को खेलें और आगे बढ़ें। मतलब एज किसी चीज़ में मायने नहीं रखता, अगर आप ठान लोगे तो एज कोई मायने नहीं एज इज रखता है, ओनली नंबर। नंबर। जी, जी। देन मोनी, आप बताइए, हाउ हैज लाइफ चेंज्ड फॉर यू? जीत के बाद कैसा रहा वो ओकेजन? उसके बाद जो विशेस आपको मिली हैं, जो लोगों के मैसेजेस आए होंगे, सबसे ज्यादा अच्छा आपको क्या मिला? क्योंकि इस गोल के बाद आपके बारे में इंडिया में सब लोग बात कर रहे थे, लॉन बोल्स के बारे में सब लोग बात कर रहे थे। बेस्ट मीन्स मेरे बेटी ने जो मुझे विश दिया तो मम्मी कांग्रेचुलेट किया तो फिर मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और हम लोग का जैसे कि हम असम से है, हम लोग का असम गवर्नमेंट ने मुझे बहुत अच्छा से मीन्स विश किया, कांग्रेचुलेट किया, सबने किया, मेरा एसोसिएशन ने किया, मेरा मम्मी पापा, क्योंकि मेरा मम्मी ने तो बोला भी है कि मुझे अभी ऐसे लग रहा है, ऐसे मीन्स कैसे समझाओ आपको कि आपको मैंने जन्म नहीं दिया है, क्योंकि आप मुझे जन्म दिया है। मेरे मामी ने मीन्स इस वर्ड के साथ मुझे मीन्स कितना अच्छा फील करवाया, हम मीन्स बोल भी नहीं सकते अभी आपको। जी बिल्कुल। और आप इंटरेस्टिंगली सब चारों लॉन बॉल से पहले कोई और स्पोर्ट खेलते थे, जैसे कि आप क्रिकेट खेलते थे, आप क्रिकेट के टीचर भी हो, आपने क्रिकेट कोचिंग भी करी हुई है, क्रिकेट कोचिंग का कोर्स किया हुआ है, तो आप सब डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स से लॉन बॉल्स में आए हैं। आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, क्रिकेट से लॉन बॉल्स कैसे हुआ? मुझे तो ये डेस्टिनेशन पता ही नहीं था कि ये मेरी डेस्टिनेशन होने वाली है। क्योंकि मेरी डेस्टिनेशन जो मैंने एक करियर बनाया था वो क्रिकेट में ही बनाया था। तो जब मैंने डीपीएस आरके को ज्वाइन किया, टाइम इज 2005, तो उस समय वाइस प्रिंसिपल हुआ करते थे डॉक्टर डिगा सैनी, फिजिकल एजुकेशन के वाइस प्रिंसिपल हमारे स्कूल के थे। तो उन्होंने मुझे इस गेम में, उन्होंने मेरा हार्ड वर्क देखा, उन्होंने मेरी बैकग्राउंड देखा, मेरी एजुकेशन वगैरह सब उन्होंने देखा हुआ था, और उनको लगता था कि यार इसमें कुछ है। तो जब भी लॉन बॉल का वहां पर कभी भी कैंप लगा कुछ भी, और फिर नेशनल गेम्स हुआ 2007 में, मुझे वहां भेजा गया, देन आई वन देयर सिल्वर मेडल। तो उसके बाद से वो जर्नी स्टार्ट हो गई। और उस समय गवर्नमेंट के अभी तक, जैसे बीएफआई है हमारी, बॉलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उनका भी एक बिग रोल है कि हमेशा हमें बकअप भी किया, मोटिवेट किया कि कोई नहीं, कि इस बार ही नहीं आया, इस बार ही नहीं आया। आईओ ने भी हम पे भरोसा किया, तो उस भरोसे को नहीं टूटना देना चाहते थे हम चारों, जबकि हम चारों फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं इस कॉम्बिनेशन में। तो कहीं पे भी आपने सेमीफाइनल फाइनल देखा होगा कि इट्स अ वेरी क्रूशियल एंड, कि कहीं हम इक्वल हुए, कभी अप हुए तो कभी डाउन हुए। तो फिर हम, आपने ये भी देखा था, हम चारों मिलके भी आए एक बार दोबारा, जब 11th और 12th एंड था, कि कोई बात नहीं हम करेंगे लेकिन जाएंगे नहीं खाली हाथ इस बार। तो वो इतना मायने रखना था कि जब वो जीते हम रोने लगे इमोशनली, कि यार मतलब इस बार हमने कितनी मेहनत की, हर एक चीज का, हर एक को जवाब देना। अब आपको भी पता है, मैंने अभी अभी जस्ट रीड आउट किया है कि जिस दिन ये लॉन बॉल का हमने मेडल लिया, इट्स 7 करोड़ समथिंग लोगों ने देखा उसको, इट्स अ रिकॉर्ड इन गूगल कि 7 करोड़ मिलियन लोगों ने मतलब देखा है कि यार ये होता क्या है। तो ये गोल्ड मेडल की हमारी उपलब्धि जो मिली है हमें, मतलब हम मीडिया को भी थैंक यू कहना चाहते हैं कि अब मीडिया के थ्रू भी अवेयरनेस जा रही है हर जगह कि कैसे ये गेम है, ये चारों कौन है, कहाँ से आए हैं। तो एक गर्ल का होना, एंड देयर इज नो एज बार। मैं खुद कहूंगी कि गर्ल्स को या बॉयज को भी, हर एक को, कम प्ले देन थिंक। ओके रूपा, व्हाट अबाउट योर हिस्ट्री? आप कबड्डी प्लेयर रह चुके हो, तो आपका शिफ्ट लॉन बॉल्स में कैसे हुआ? क्या सोच के आपने किया कबड्डी से लॉन बॉल्स में शिफ्ट? ऐसा तो कभी नहीं सोचा था कि मेडल हो पाएगा। जब मैं कबड्डी खेलती थी तो एक मेरे भैया थे, उन्होंने मुझे बताया कि एक नया गेम है जिसमें इंडिविजुअल भी खेला जा सकता है, अगर तुम कोशिश करोगे तो कुछ कर सकती हो। यही शब्द उन्होंने यूज किया था। तो मैं गई थी कि चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ, और वो मुझे गेम अच्छा लगा था और इंडिया में नया भी था। तो कबड्डी टीम गेम है तो मैं इंडिविजुअल खेलना चाहती थी। तो जो मेरे भैया थे उन्होंने मुझे बोला कि ट्राई करो, तो मैंने ट्राई किया, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने कबड्डी को पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मुझे वहां पे भी ये बोला था कि आप दोनों में से केवल एक गेम खेलो, या तो आप लॉन बॉल खेलो या तो आप कबड्डी खेलो, ऐसे मुझे किसी ने कहा था। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैं लॉन बॉल की तरफ गई, और लॉन बॉल में जब देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये कॉमनवेल्थ का कोर गेम है और इसमें भी इंडिया कुछ कर सकता है।
When it's never too late to reinvent yourself or to do something new. That's really the primary message from your win. Lovely, I want to ask you also, आप athletics में थे, आप long jumping करते थे, तो आपका shift कैसे हुआ? और जब आपने shift किया, क्योंकि lawn bowls इंडिया में नहीं खेला जाता है इतना, जबकि ये Commonwealth में core sport रहा है, इसके equipment, इसकी facilities, क्या training करने में आपको दिक्कत आती थी शुरुआत में? हम पहले एथलेटिक्स करते थे, उसके बाद हमको कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो फिर हमको छोड़ना पड़ा। उसके बाद एक भैया है, वो हमको बताया एक नया गेम आया झारखंड में, तुम ट्राई कर सकती हो। फिर हम जाके ट्राई किए तो हमको अच्छा लगा, उसके बाद करना चालू किए। और जो इक्विपमेंट का बात है वो हम लोग खुद से अपना लेते हैं। अच्छा, इक्विपमेंट खुद से लेते हैं। नयन, आप बताइए, आपकी जर्नी वेट लिफ्टिंग से लॉन बोल्स में आई है। जी, मेरा बैक पेन हुआ था बोल के हम साइंस स्टूडेंट था, तो मेरा क्योंकि इवेंट नहीं था लॉन बॉल, फिर बोला कि नया इवेंट आ रहा है, 2007 नेशनल गेम में हुआ था लॉन बॉल असम में, तो वहाँ शुरू किया था। पहले बोला कि नया इवेंट आ रहा है, आप खेल सकते हैं, आपका बैक पेन में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा ये गेम खेलने से। तो हम लोग का साई का जो सर है, डिप्टी डायरेक्टर और हम लोग का वेटलिफ्टिंग का कोच जो है, उन्होंने बताया कि आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने ट्राई किया, अच्छा लगा, तो मैंने खेलने शुरू किया, जो मीन्स अच्छा लगा मुझे। फिर धीरे धीरे नेशनल खेला, फिर इंडिया टीम के लिए ट्राई किया, तो मीन्स इंडिया टीम के लिए ट्रायल मिला भी है मुझे, हम इंक्लूड भी हुआ। तो धीरे धीरे बढ़ते गया, तो अच्छा भी लगा। 2-3 अगर मेडल मिला तो नेशनल गेम भी खेला, नेशनल गेम में भी मेरा गोल है। तो एशियन चैंपियनशिप भी खेला, उसमें भी गोल है। तो मुझे लगा कि हम देश के लिए कुछ कर सकता है। जब 2010 कॉमनवेल्थ में हुआ तो मुझे और अच्छा लगा वहाँ पे गेम देख के, क्योंकि मैं भी थी वहाँ पे। तो गेम पूरा देखा, हम कंपटीशन देखा, तो अच्छा लगा। और ऊपर से ये है कि कॉमनवेल्थ में ये क्वालिफाई कर दिया गया था, तो इसीलिए लगा कि हम लोग कुछ कर सकता है। राइट। तो पिंकी, मुझे एक बात बताइए, आप लोग बात कर रहे हैं कि आप ये जरूर चाह रहे थे कि आप खाली हाथ वापस नहीं आएंगे, लेकिन ये ऐसा स्पोर्ट है जिसमें भारत ने कभी कोई मेडल जीता नहीं था, तो क्या आपके अंदर वो बिलीव था कि आप मेडल जीत सकते हैं और गोल्ड जीत सकते हैं? नहीं, बिलीव ये था कि हम लोग मेडल जीतेंगे, लेकिन ये बिलीव नहीं था कि इट्स गोल्ड। क्योंकि वी जस्ट कम है कि हम इस कोऑर्डिनेशन खेल रहे हैं, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस जब कर रहे थे तो हम सबकी एक इनर पार्ट कहते हैं ना, एक इनर कोड होता है, वो कहता है कि इस बार कुछ अच्छा होगा, तो वो हो रहा था। और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा, हम चारों में बहुत अच्छा चल रहा था। तो यही होता था कि हम चारों क्यों ना उतरे इस बार कॉम्बिनेशन से, कभी खेला नहीं है। और इससे पहले ये नहीं कि हम चारों ही जो यहाँ पर हम चारों बैठे हैं, रूपा, नयन, लवली, माई सेल्फ, हम चारों ने एशिया पैसिफिक और इवन क्वालिफाई किया है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। उसमें भी हमारे मेडल है 2009 टिल 2018 अभी तक जितनी एशियन चैंपियनशिप है, हम चारों ही गोल्ड मेडलिस्ट भी है, सिल्वर भी है, ब्रॉन्ज भी है इन कॉन्टिनेशन। लेकिन वो वजूद, वो जो आज मिल रहा है, वो अवेयरनेस नहीं थी तब भी लोगों में, लेकिन जो आज पता चल रहा है कि यार जैसे गोल्ड जब से आया, वो भी CWG, तो ये अलग ही चार्म है इसका। अब लोगों को अवेयरनेस हो रही है और हमें इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि ओके हमारे लिए हो गया, लेकिन अब इसको मेंटेन रखना भी उतना ही जरूरी हो गया। रूपा, आज जब याद करते हो इस सक्सेस को, तो फिर क्या याद आता है? कुछ स्ट्रगल याद आती है फैमिली की तरफ से, आपकी अपनी तरफ से? आपकी तो शादी भी शायद रिसेंटली ही हुई थी। हाँ, एक है मेरे फैमिली से, मेरी अभी जस्ट जनवरी 30 को शादी हुई थी और मार्च 15 से दिल्ली में इंडिया का कैंप था। राइट। तो 1 महीने ही हुए थे हम मेरे शादी को फरवरी में, और दिल्ली से न्यूज आ गई थी कि आपका सिलेक्शन हुआ है, तो इतना दिन का कैंप है, आपको रहना पड़ेगा। तो मैं पहले अपने फैमिली से झिझक रही थी बात करने के लिए कि अभी शादी हुई है, अभी यहाँ से जाने के लिए बोलूंगी 4-5 महीने के लिए तो उनको प्रॉब्लम होगा या फिर क्या बोलेंगे बोलो। तो मैंने इस बारे में इससे पहले हस्बैंड से बात की। मैंने बोला कि पूछो हमारे जो ससुर है उनसे पूछो क्या बोलते हैं, या ये लोग जो है। तो उन्होंने बोला कि अगर नहीं ये आई है, अगर इसको इच्छा है तो जाना चाहती है तो जा सकती है इस टाइप का। तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे परमिशन दिया कि इससे पहले भी तुम शादी के पहले खेलती थी, तो अभी भी कंटिन्यू रखो,
फिर मैं ही झिझक गई, फिर पीछे हट गई कि नहीं Hmm. मुझे नहीं जाना है, लोग क्या समझेंगे। वाइफ को भेज दिया 4-5 महीने के लिए शादी के जस्ट बाद। और फिर बीच में प्रॉब्लम आई थी कैंप के दौरान, मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई थी, तो मुझे वो बार बार मैं उससे बात करती थी तो खराब लगता था कि मैं उसके साथ में नहीं हूँ। तो ससुर की भी तबीयत खराब हुई थी, तो उसमें भी लगता था कि गलत किया मैंने शायद। Hmm. लेकिन वही लोग हिम्मत देते थे कि लास्ट है, या फिर इतने महीने रही तुम तो 1 महीने और सही। तो लगातार मैं उसके फरवरी के बाद मार्च से टीम के साथ हूँ। 1-2 बार मैं रांची गई थी, अपने हस्बैंड या फैमिली से मिली थी। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए ये भी है मोटिवेशन अपने फैमिली की तरफ से कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया शादी के बाद भी। Right. मैं हिम्मत हार रही थी लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रहे थे, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। तो वो चीज बिल्कुल। भी एक बैकबोन था पीछे हम सबके साथ में। हम सबकी फैमिली है और हम सबकी सब फैमिली ने हम सबको चारों बहुत को बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट सपोर्ट किया। मेडल हम लोग जीते हैं लेकिन उनको देख के लगता है कि वो लोग जीते हैं। Bilkul. Bilkul. Absolutely. Beautiful. Thank you so much for sharing those stories with us. Now also to another history maker who almost missed the bus to CWG and had to fight a court battle. High jumper Tejaswin Shankar, who clinched the bronze and won India's first ever medal in this discipline. Tejaswin, many congratulations and thanks a lot for speaking to us. You nearly did not make it to Birmingham. You had to fight a court battle to even be there as part of the Indian team. Is this medal India's first ever in high jump especially sweeter because of that? Yeah, I mean, I wouldn't say that it's sweeter just because of that, but yes, it's been a roller coaster of a journey to be able to get here. And that being said, I feel like I'm just so happy. Yeah, that's all I have to say. Is there any hard feelings that you had to fight this court battle to be there? You had to take the Athletics Federation to court despite achieving the qualification mark? Uh, I wouldn't say there's any hard feelings, but at the end of the day, we all, be it Athletics Federation of India, be it SAI, be it IOA, be it anybody, be it the athlete, the only thing that everybody is concerned about is trying to maximize the medal tally for the country, and everybody has their own ways of doing it. And yes, there might be difference of opinion, and in this case, there was, but ultimately, everybody realized that okay, I'm glad, I was given the opportunity at the end and I was able to make the most of it. And at that point, the only thing that I could have done was to bring a medal and contribute to the tally. And the fact that I did that, I'm just grateful that okay, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए. So in the end, I was given that opportunity, and in the end, I was able to make the most of that opportunity. So that's what matters to me. It doesn't matter if I had to fight a court battle or whatnot. Ultimately, we were able to get a medal for the country, and that's just a medal through me. It's not my medal, it's the country's medal. And I'm just so happy I'm the bearer of that medal for our country. And that just makes me so happy. Yours is now a historic achievement. How does that make you feel? As I said, this is India's first ever high jump medal at the Commonwealth Games. Yeah, that's cool. I mean, it's all right. It's all right. Don't you feel great that you've scripted your name into history forever? That's okay. I feel like, I mean, that's for you guys to figure out. I mean, for me, I just go there, compete, come back. Like, I don't really look back at what I did and how many centimeters or millimeters. For me, it's just like, okay, I did my best on that day. Like, since then, I haven't even watched videos of my high jump because I just feel nervous and anxious. I just don't want to go back and live that moment again. So for me, the competition part is over. Now I just want to celebrate, spend time with my family, you know, just hang out with my friends. I think that's the better part for me. If I go back to watching videos of my competition, I'll just be like, oh, I could have done this, I could have done that. Yeah. I don't want any regrets or any expectations out of my performance. I'm just happy that I was able to bring a medal and on to the next competition. That's how I look at it, and that's how I will go. Let me just ask you finally, what does this bronze medal mean to you after everything that you've been through? And how are you going to celebrate this? It just means the whole world to me and my family. And before coming here, the only person who was, I mean, like, we didn't really hope
to come here to the Commonwealth Games. We like feud even like 5-6 days before the Commonwealth Games. Like even the opening ceremony, I was sitting in my house and with my mother. So my mother jokingly said, she said like, I really don't think you're going to compete. I was like, please mom, don't say all these things. I say, apshagun mat bolo, acha bolo. So then next day we found out that we were going. So everything just happened so fast that we never really had the time to process or, had the time to get excited about the possibility of competing at the Commonwealth Games, get excited about, competing with all these stalwart athletes. So for me, it was just a pick up your bag and just go moment, because it's still sinking in. So I'm just excited to go back home, spend time with my family, show it to my mother. I had a WhatsApp call with her yesterday, WhatsApp call with our family, and everybody was so excited. My grandmother was up watching, the competition on TV, and how like in our family or in any family, you've made it in life when you're on TV. So for my I've made it in life. So now I just want to go back home and show her the medal and just enjoy my time with the family. Now, weightlifting produced as many as 10 medals in this edition, including 3 golds. Of course, there was Mirabai Chanu doing it again, Jeremy Lalrinunga and Achintya Shuli. We in fact spoke to the 19-year-old Jeremy, who became an instant youth icon in the country with his gold, performing with cramps on the day. Listen in. You have become the youth icon of Indian sports. Just 19 years of age, you started weightlifting just 10 years ago. Just share with us your emotions after winning the gold. मैं बहुत खुश था और मैंने जो भी ट्रेनिंग में किया था और मैंने जितना एक्सपेक्ट लेके आया था कि इतना करना है, उतना कर नहीं पाया, लेकिन मुझे जो चाहिए था, ये गोल्ड है, जो मेडल था, वो जीत कर आया, वो बहुत खुश हूँ मैं। जी, आपने बहुत पेन में और इंजरी के साथ परफॉर्म किया। कैन यू डिस्क्राइब कैसा रहा परफॉर्मेंस आपके लिए, कितना मुश्किल था? मैम, जैसे हमने स्नेच स्टार्ट किया था, स्नेच में तो काफी सही चल रहा था बॉडी, और जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स का भी रिकॉर्ड बनाया था स्नेच में, और क्लीन एंड जर्क में भी काफी प्रिपेयर किया था मैंने इसके लिए। और हमने जैसे ही वार्मिंग अप स्टार्ट करने शुरू किया और मेरा मसल दोनों 28 और मेरा दोनों इन 28 जो है क्रेम होने लग गया और दोनों एकदम कैच हो गया था। मैं चल भी नहीं पाया और बैठने से भी पेन कर रहा था और खड़ा भी नहीं हो पा रहा था सीधा, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन वार्मिंग अप में भी मैंने 120 तक किया था मैंने। हमने तो सोच के आया था कि हमने वार्मिंग अप में 160 तक करेंगे और 160 के बाद स्टेज में जाके सीधा रिकॉर्ड लीफ लगाने के लिए या टोटल इम्प्रूव करने के लिए हमने सोचा था, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि गेम में तो कुछ भी हो सकता है और किसके ऊपर क्या होगा कुछ पता ही नहीं होता। फिर भी कोच साहब ने बहुत मोटिवेट किया मुझे और रोया था भी बहुत मैं उस टाइम पे, क्लीन एंड जर्क का टाइम पे बहुत रोया मैं। समझ में नहीं आ रहा मैंने कितना, जो भी कोच साहब ने दिया था कम करके एकदम 154 भी, मतलब यहाँ लिफ्टिंग खत्म होने के बाद मुझे पता चला कि इतना केजी है बोल के। बिल्कुल हार्ड भी था मैम, लेकिन खुश है अभी बहुत। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको प्राइम मिनिस्टर ने भी हेल किया एज अ यूथ फेस, सिर्फ 19 साल 20 साल के आप हैं, तो आपको रिस्पांस कैसा लगा भारत की तरफ से और आपके होम टाउन से, होम स्टेट से कैसा लगा रिस्पांस अभी तक का? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, काफी मैसेजेस आया है और ट्विटर में भी काफी हमारा प्राइम मिनिस्टर सर ने और बाकी और भी ने बहुत ट्वीट भी किया मेरे लिए, इतना सारे प्यार दिया हमारा जनता ने, और मैं इन सब को देख के और भी इंस्पायर हूँ और मोटिवेट भी मिला है, मुझे खुद मोटिवेट भी हो गया और मुझे बहुत अच्छा लगा है। और अगले जो टारगेट हमने रखा है ओलंपिक्स के लिए, उसके लिए भी काफी मेहनत मुझे हेल्प करेगा इन सब में। जी जी, ये वो ओलंपिक्स आपका नेक्स्ट टारगेट है बिल्कुल? यस मैम, यस मैम। अच्छा, तो आप ये विन आप किसको डेडिकेट करते हैं? कौन रहे हैं आपके करियर में बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट? मैम एक ही को नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत किया इसके लिए और इतना मसल प्रॉब्लम और वार्मिंग अप, बिना वार्मिंग अप होते हुए भी इतना गोल्ड के लिए मैंने लड़ा है, तो मैं एक ही को नहीं दे सकता। पहले तो मेरा पूरा
इंडियन हमारा देश को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। और हमारा कोचेस और हमारा जो भी सपोर्ट स्टाफ फिजियोस है और मेरा फैमिलीज और मेरा ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। जी जी जी, मैं आपके फैमिली के बारे में पूछना चाहती थी कि आपके जी पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया होगा, क्योंकि आप 6 भाई बहन हैं और आपके जी जी। फादर मदर ने बहुत सपोर्ट किया है सारे बच्चों को। तो क्या हार्डशिप्स आपने देखी हैं जब आप छोटे थे, बच्चे आ, थे? बहुत मुश्किल टाइम गुजारा है हम, क्योंकि पापा PWD लेबर है और महीना का कमाई उसका 6,000 7,000 का होता है। और हम फैमिली में मेरा भाई है, हम 5 भाई है और मम्मी है। और मतलब मैनेज करने काफी मुश्किल होता है। लेकिन अभी मैं खुद अभी इंडियन आर्मी में हूँ, अभी थोड़ा कमाने लग गया हूँ, तो अभी सही चल रहा है हर चीज। और काफी मेरा फादर भी बॉक्सर है, नेशनल में भी काफी टाइम मेडल ले चुका है और खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता है मुझे क्या अच्छा होता है और कितना मेहनत करना पड़ता है इसके लिए। हर चीज मुझे शेयर करता है और पूरा मेरा फैमिली बहुत इंस्पायर करता है मुझे। मेरे 2018 में यूथ ओलंपिक जाने से पहले मेरा ग्रैंडफादर का एक्सपायर हो गया था, अच्छा। तो बहुत बुरा भी लगा था, घर भी नहीं जा पाया। और उसके बाद 2018 में ही दादा जाने का थोड़ा देर के बाद दादी भी चला गया था। उन दोनों को मैं इसीलिए डेडिकेट करना चाहता हूँ। हाँ जी। जी, और अपनी फैमिली से क्या बात हुई आपकी? बहुत बात हुआ और इतना भीड़ भी हो गया था। मेरा घर में सभी गांव वाला आया था हमसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। और अलग अलग न्यूज से भी मम्मी पापा, भाषा तो नहीं आता लेकिन फिर भी जितना हो सकता है उससे मीडिया की तरफ से भी प्यार बहुत मिला है मेरा फैमिली को भी और मुझे को भी। बहुत अच्छा लगा मेरे। Another one of our top draws was the sport of boxing that produced 7 medals, 3 of them being gold. Now, apart from Nikat Zareen and Amit Pangal, both of whom have already won many laurels to their name in the past, these games also threw up a new star in Neetu Gangas, who won the gold in her very first Commonwealth Games. Listen in from her. ये आपके करियर की सबसे बड़ी जीत रही है। आपको क्या लगता है कि इस जीत के पीछे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किस चीज का रहा है? ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है। जो मैंने इतने सालों से मेहनत की थी उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है और मैं आगे भी ऐसे ही अपने कंटिन्यू रखूंगी, मेहनत और भी ज्यादा करूंगी और देश के लिए ढेर सारे मेडल जीत कर लाऊंगी। तो आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स में जो परफॉर्मेंस रही है जिसकी वजह से आपको गोल्ड मेडल मिला है, आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हो, कैसे रेट करोगे जो आपने सारे बाउट्स खेले हैं और फाइनल में स्पेशली? तो भी मुझे मेरे कोचेज हैं, भास्कर चंद्र भट्ट सर हैं मेरे, और कोचेज हैं जो भी मुझे बता रहे थे तो मैं वही फॉलो कर रही थी। तो उनको पता है मैं इतने सालों से उनके पास ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो वो जानते हैं मुझे कि किस बॉक्सर के साथ कैसे खिलाना है, तो वही प्लानिंग करके हम रिंग में जा रहे थे। जी, तो लास्ट के 24 घंटे कैसे रहे हैं नीतू आपके लिए? और घर वालों की तरफ से, फैमिली की तरफ से, आपके पापा ने बहुत सैक्रिफाइसेस करे हैं आपके करियर के लिए। कैसा रिस्पांस रहा है, कैसा रिएक्शन मिला है आपको अपनी फैमिली वगैरह से? मैं बहुत एक्साइटेड थी ये फाइनल बाउट खेलने के लिए, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद मुझे गोल्ड मेडल मिलने वाला है। तो बहुत अच्छा लग रहा था और पूरे सब फैमिली में सब खुश हैं और पापा यही फील कर रहे हैं कि जैसे मेरी जगह वही है यहाँ पे, वही मेडल पहन रही, बहुत खुश हैं। तो आज जब आपके हाथ में ये गोल्ड है, तो वो गोल्ड मेडल आपने शायद पहना हुआ है तो हमें जरूर दिखाइए। और जब आपके हाथ में और आपके गले में वो गोल्ड मेडल आज आप है आपके पास, तो आपको क्या याद आता है? अपने 12 साल की उम्र में शायद बॉक्सिंग शुरू करी थी, तो आपको क्या याद आता है जब आज आप कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन बन गए? मुझे ये गोल्ड बहुत मुश्किल से मिला है। मैंने इतने सालों से इसके लिए ट्रेनिंग कर रही थी मैं, मुझे इंजरीज भी हुई और भी काफी परेशानियां आई, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि जो मेरे अभी तक परेशानियां आई हैं, जो भी मुश्किलें आई हैं, उन्होंने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया इस चीज के लिए कि मैं आज ये हासिल कर पाई हूँ। जी जी, तो आगे अब आपके क्या टारगेट रहेंगे नीतू?
अभी हमारे इस साल बहुत कंपटीशन है, तो मैं हर एक कंपटीशन पे अपना पूरा फोकस करके, अपना अच्छी ट्रेनिंग, हार्ड वर्क करके वैसे ही मेडल जीतती रहूंगी। जी, मेनी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। नीतू, अच्छे से एक बार अपना गोल दिखाइए। थैंक यू मैम।